اسلامیہ غوث اعظم کے دور میں ایک گانا گایا کرتا تھا، جو گویا تھا بہت گانے گایا کرتا تھا، اسے لوگ اپنے گھر پہ بلایا کرتے تھے اور گانے سنتے تھے اور اسے پیسے دیتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ میرے پیارے بھائیوں، کچھ باتیں میں تمہیں ایسی بتانے جا رہا ہوں کہ آج ہمیں اس سے پتہ چل جائے گا، اس سے ہمیں یہ سبق مل جائے گا، اس سے ہمیں یہ سبق سیکھنے کو مل جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ گویا گانے گایا کرتا تھا، جب غوث اعظم کو یہ پتا چلا، غوث اعظم رضی اللہ عنہ جب اس نے گانا شروع کرا اور جیسے گانا شروع کرا، غوث اعظم فرماتے ہیں اے گویے تو گانا بند گایا کر، اللہ برا مانتا ہے۔ بچن کے بولے یا رسول اللہ، میرے غوث اعظم رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے گویا تو گانے بند گایا کر، تو نعت پڑھ لیا کر، تو کوئی درود پاک پڑھ لیا کر، یا سبحان اللہ یا الحمدللہ کا ذکر کر دیا کر۔ غوث اعظم کے چاہنے والوں، غوث اعظم کے دیوانوں، آؤ اب دیکھیے عزیزان ملت اسلامیہ، غوث اعظم نے اتنا کہا اور کہنے کے بعد وہ گویا کہتا ہے دیکھو عبد القادر کو میری شوہرت سے جلن ہوتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے پیارے بھائیوں، اب دیکھیے جب غوث اعظم رضی اللہ عنہ اتنے ارشاد فرماتے ہیں تو وہ گویا کہتا ہے دیکھو نا عبد القادر کو میری شوہرت سے جلن ہوتا ہے، عبد القادر کو میری دولت سے جلن ہوتا ہے، عبد القادر کو میرے پیسوں سے جلن ہوتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اس نے اتنی بات کہی اور کہنے کے بعد لوگ آج تک ہی مغنی ہے، اگر مولانا صاحب کسی کو کوئی بات بتانا چاہتے یا کوئی اور بھی ایسی بات ہوتی ہے کہ امام بتانا چاہے اور ہمارے آج عقیدے کیسے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اتنا اس نے کہا اور کہنے کے بعد اور کچھ لوگ ہوتے ہیں اگر ہم کہتے ہیں حضرت سماعت فرمائیں، حضرت جب دیکھیے اتنا کہتے ہیں اور آج کا بھی دور ایسا ہے، اگر ہم کہہ دیں یہ کام غلط ہے، اگر ہم کسی کو سمجھانے کی کوشش کریں یا اپنے بڑے بھائی کو بتائیں بھائی یہ کام غلط ہے تو وہ کہے گا، یا کسی دوست کو بتائیں ارے یار تو میری دولت سے جلتا ہے، ارے یار تو میری شوہرت سے جلتا ہے، ارے یار تو میرے مکان سے جلتا ہے، ارے یار تو میرے کاروبار سے جلتا ہے، ارے یار تو میری شوہرت سے جلتا ہے، ارے یار میرے تو مکان سے جلتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے پیارے بھائیوں، اور وہ جا کر چوراہوں پر کھڑے ہو کر کہنے لگا کون؟ وہ گویا جو گویا تھا جو غوث اعظم کے بارے میں غوث اعظم نے ارشاد فرمایا تو گانے بند گایا کر، تو نعت پڑھ لیا کر، یا درود پاک پڑھ لیا کر، یا صلاۃ و سلام پڑھ لیا کر۔ وہ گویے نے اتنی بات سنی اور سننے کے بعد وہ چلنے لگتا ہے، چوراہے پر پہنچتا ہے اور کہتا ہے دیکھو نا یار عبد القادر کو میری شوہرت سے جلن ہوتا ہے، دیکھو نا یار عبد القادر کو میرے گھر سے جلن ہوتا ہے، دیکھو نا یار عبد القادر کو میری آواز سے جلن ہوتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے پیارے بھائیوں، عزیزان ملت اسلامیہ، جب اتنا کہنا ہوا کبھی وہ چوراہوں پر کھڑے ہو کر کہتا ہے، کبھی وہ مکانوں پر کھڑے ہو کر کہتا ہے، کبھی وہ دکانوں پر کھڑے ہو کر کہتا ہے۔ ارے میرے پیارے بھائیوں، جب وہ اپنی بات کہتا ہے اور کہنے کے بعد غوث اعظم چلے جاتے ہیں اور جانے کے بعد جب وہ گویا پھر کماتا تھا اور گھر والوں کو پیسہ لا کر دیتا تھا، گھر والے کھانا دیا کرتے تھے، وہ کھانا کھاتا تھا، آواز کو اپنی اور بلند کرتا تھا اور چلا جاتا تھا، کہیں گانا گایا اور پیسے لے کے آیا، گھر والوں کو دیا، گھر والوں نے کھانا دیا، اس نے کھانا کھایا پھر چلا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چنانچہ کافی ٹائم ہو گیا، جب ٹائم ہوتا چلا گیا، جب بڑے بڑے جب وہ بوڑھا بننے لگا، جب وہ بزرگ کے حالت میں آنے لگا، جب وہ بوڑھا ہو گیا، اس کی چاند پر سفید بال آ گئے، اس کی آواز خراب ہونے لگی، اس کی آواز جب خراب ہونے لگی لوگوں نے منہ لگانا کم کر دیا، لوگوں نے بلانا بہت کم کر دیا، جب اسے لوگوں نے بلانا بہت کم کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب لوگوں نے بلانا اسے کم کر دیا، کم کرنے کے بعد اس کے بعد جب وہ گانا گایا کرتا تھا اس نے جانا بند کر دیا، گھر والوں نے رشتے داروں نے چھوڑ دیا، جب اس کی آواز خراب ہو گئی محلے والوں نے چھوڑ دیا، جب اس کی آواز خراب ہو گئی دوستوں نے چھوڑ دیا، جب اس کی آواز خراب ہو گئی گھر والوں نے چھوڑ دیا، رشتے داروں نے چھوڑ دیا، گاؤں والوں نے چھوڑ دیا، بستی والوں نے چھوڑ دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اس کی آواز خراب ہو گئی تو اس کے گھر والوں نے اسے چھوڑ دیا، اس نے پیسہ لانا بند کرا، انہوں نے کھانا دینا بند کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غوث اعظم کے دور میں غوث اعظم کے دور میں وہ گویا اتنا کہتا ہے اور کہنے کے بعد جب اس کے لوگوں نے اسے بلانا بند کر دیا، گھر والوں نے کھانا دینا بند کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کافی ٹائم ہو گیا، لوگوں نے اسے بند کر دیا، وہ گھر سے باہر نکل گیا، گھر والوں نے کھانا بند کر دیا۔ عزیزان
अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया जब उसे लोगों ने बुलाना बंद कर दिया, उसे छोड़ दिया और कोई बात नहीं, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया वो जाकर कब्रिस्तान बैठ जाता है, कहता है मेरे रिश्तेदारों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे गाँव वालों ने मुझे छोड़ दिया, आज मेरी आवाज़ खराब हो गई तो मुझे मेरे गाँव वालों ने छोड़ दिया, मुझे मेरे बस्ती वालों ने छोड़ दिया, मुझे जो गाना सुनते थे उन लोगों ने छोड़ दिया। तो वहाँ पर जाके वो क्या कहता है, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया वो कहता है क्या पता कोई आवाज़ दे, कोई गाना लगाए ना लगाए, कोई उठा के लाए ना लाए, तो वो ये ख्याल सोच कर कब्रिस्तान में बैठ गया और बैठने के बाद कहने लगा कोई पता नहीं कि गाना देना न दे, या कोई पता नहीं कोई मुझे उठाकर दफनाए या ना दफनाए, ये कब्रिस्तान में सोच कर बैठ गया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया जब ये कब्रिस्तान में बैठ गया तो मेरे गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु, गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु उस कब्रिस्तान के तरफ से आपका गुजर होता है तो आप देखते हैं जब कब्रिस्तान के सामने नजर पड़ती है तो देखते क्या है कि वही फकीर के वही दीवार जिसके गाने गाया करता था, बड़े अच्छे लोगों के फिर बराबर में बैठा करता था, बड़े बड़े दूर जाता था, जो गाने गाया करता था, बड़ा अच्छा अंदाज था, ये गाने गाया करता था। मैंने इससे ये कहा था कि तू गाने मत गाया कर, अल्लाह बुरा मानता है, तू गाने मत गाया कर, तू बहुत बुरा पछताएगा। इतना कहना हुआ अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु उसके चेहरे को देखते हैं और देखने के बाद अपने कदम रोक लेते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, इसलिए कि अगर वो मुझे देख लेगा तो रोने लगेगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया गौसे आज़म वापस आ गए, आने के बाद अब इतना देखना हुआ तो वो यही ख्याल में डूबा है कि मुझे कोई गाना दे दे, इसीलिए मैं कब्रिस्तान में बैठ जा रहा हूँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया जब गौसे आज़म आते हैं तो अपने सागिर्द से कहते हैं सुनो जाओ कब्रिस्तान चले जाओ, मुझे बोले या रसूल अल्लाह जाओ कब्रिस्तान चले जाओ और एक फकीर बैठा होगा, एक तन्हा आदमी बैठा होगा और वो इस ख्याल में खोवा होगा, उससे कुछ पैसे लिए, अपने सागिर्द को पैसे दिए, पैसे देने के बाद जब पैसे दिए जाओ उसे पैसे दे देना और जाने के बाद चलने लगा। जैसे गौसे आज़म का सागिर्द आगे बढ़ता है, बढ़ने के बाद जैसे गौसे आज़म का सागिर्द आगे बढ़ता है तो गौसे आज़म कहते हैं ठहरो सुनो, अगर कोई पूछे ये पैसे किसने दिए हैं, अगर कोई पूछे ये पैसे किसने दिए हैं, ये रुपए किसने दिए हैं तो मेरा नाम मत बताना, तो वो शर्मिंदा हो जाएगा, मेरा नाम मत बताना तो वो शर्मिंदा हो जाएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया तो इतना कहना हुआ और कहना होने के बाद वो सागिर्द चलता है, चलने के बाद कब्रिस्तान पहुंचता है, पहुंचने के बाद अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया जब कब्रिस्तान पहुंचा उसके हाथ में पैसे पड़ाए तो चलने लगा। सागिर्द गौसे आज़म का जब वापस आता है तो वो हाथ पकड़ देता है और लगता है ये तो बता दे वो कौन था, कौन सही था तो दुनिया में मुझे सब ने छोड़ दिया, अरे वो कौन था जिसने पैसे दिए हैं, तो उसने कहा इतना कहना हुआ। और आज का टाइम क्या है हज़रत, आज का टाइम क्या है कि अगर हम किसी को ज़कात निकालते हैं या हम किसी के लिए कोई पैसा देते हैं या हम मदरसे में कोई ईंट लगाते हैं, मस्जिद के अंदर कोई ईंट लगाते हैं तो सबसे पहले अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया या हम किसी को ज़कात देते हैं तो पता है कैमरे में लगाकर आज अगर कोई प्रधान बनता है ना तो वहाँ पर 2-3 लोग इकट्ठा होना करते हैं, इकट्ठा होने के बाद अगर एक केला पकड़ेंगे तो कसम खुदा की ये 4 लोग एक केला पकड़ के फिर सेल्फी लेते हैं। और अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया मेरे प्यारे भाइयों मुझे बताओ कि आज ये जो प्रधान के साथ में इस तरह सेल्फी ले रहे हो, प्रधान के साथ में एक केला है और ज़कात देते हो, फोटो खिंचा के देते हो, अरे बात बता, अरे कोई धोखे ना देखे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया तुम ज़कात देते हो तो कैमरे में फोटो खिंचाते हो, मस्जिद को कोई पैसा देते हो, ऐलान कराते हो, जब तुम मदरसे में कोई पैसा लगाते हो तो बस्ती में गाय गाय फिरते हो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुमने ज़कात दी तो ये दुनिया वालों को दिखा के दे रहे हो, अरे कोई देखे ना देखे खुदा को देखा है और खुदा ना देखे तो किसका साथ होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खासियत, नारे खासियत, उसके अलावा ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। कोई देखे ना देखे
मदीने वाला मुस्तफा को देखता होगा। ना कहना हुआ अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे प्यारे भाइयों, अब मुझे बताओ, आज तुम सेल्फी लेते हो, मुझे बात बताओ, जब वो सखी वहाँ से चलता है, हज़रत चल के बोले या रसूल अल्लाह, ये बात बोले गौसे आज़म की नम कर या गौसे आज़म। कहना हुआ, कहना होने के बाद वो पीछे चलता है और चलने के बाद कहता है मुझे भी ले चलो। वो सही कौन है? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सुभान अल्लाह बोले बोले या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब ये मदरसे के गेट पर पहुंचता है और गौसे आज़म का सागिर्द जब ये मदरसे के अंदर घुसा, मदरसे के अंदर पहुंचा, पहुंचने के बाद कहने लगा गौसे आज़म रज़ी अल्लाहु अन्हु, ये देखते हैं और देखते ही खड़े हो जाते हैं कि उसकी याद आंखें हो गई है, सुरख आंखें हो गई है और रोता हुआ आया है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आज के पीर और जब गौसे आज़म रज़ी अल्लाहु अन्हु ये देखा और देखते ही खड़े हो गए। बच्चों को दर्श दे रहे हैं सुभान अल्लाह, बच्चों को दर्श दे रहे हैं बैठे बैठे सुभान अल्लाह। गौसे आज़म ने देखा कि ये तो वही सब थे और खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर देखने लगते हैं। और आज के पीर कसम खुदा की सुना, उन पीर अपने जाने की जरूरत नहीं है। जब पीर की बात आए तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर पीर की बात आए चलो आओ, मैं पीर दिखाना चाहता हूँ, पीर देखो कि पता चलेगा। बरेली की सरजमीन पर चले जाओ, जिसे आज दुनिया पुकारती है मेरा पीर मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया को देख लो। तो दुनिया वाले जब देखते हैं अज़हरिया को देख लो, अगर देखना है तो ताजुल शरिया को देखना है, अगर देखना है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। आज हम मुरीद हो जाते हैं, लंबे लंबे बाल है, लंबा लंबा झुब्बा टांग लिया और एक कुर्ता लिया कमचा और जोड़ा लिया बने अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे एक गौसे आज़म की करामात में अगर तुझे कुछ देखना है तो गौसे आज़म की देख ले। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हम देखते क्या है, अगर हमने कोई भगोना तैयार करा, गौसे आज़म की गारनी के लिए खाना तैयार करी, तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मौलाना बाग में आएंगे, आरिफुल्लाह बाग में आएंगे, सबसे पहले रिश्तेदारों को दावत दी जाएगी, सबसे पहले रिश्तेदारों को बुलाया जाएगा, सबसे पहले खानदान वालों को बुलाया जाएगा, सबसे पहले बस्ती वालों को बुलाया जाएगा। सब लोग जमा होंगे, जमा होने के बाद वहाँ पर कोई अपने अपने कामों में बिजी होगा और जब ये इमाम साहब आएंगे, इमाम साहब आने के बाद ये वादा खाली करेंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सोच लेना मेरे प्यारे भाई, आज हमने जो 11वीं सजाई है, 11वीं का मकसद क्या है? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमने इसमें सबों को पूछा है, रिश्तेदारों को पूछा है, यार दोस्तों को पूछा है। सबे पूछने के बाद जब ये फरिश्ते खुल गए, मौला की बार जब अल्लाह तबारक तआला हुक्म देगा, ऐ फरिश्तों जमीन पर चले जाओ और देखो जाकर कि तुम्हारे रब का कहाँ से हो रहा है। जब ये फरिश्ते आएंगे आने के बाद कहेंगे मौला मौला, जब ये फरिश्ते देखेंगे, आज तुम देख रहे हो कि आपके सामने इतने बड़े बड़े अच्छे हाफिज यहाँ पर जलवाबार हैं सुभान अल्लाह। जब ये फरिश्ते अपनी काबू में चला लेंगे और मौला की बाबा में कहेंगे ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, जब हम महल की सरजमीन पर गए थे वहाँ इतने लोग जमा थे, कोई सुभान अल्लाह बोल रहा था, कोई अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहा था। अल्लाह की बारगाह में जब फरिश्ते ये पेश करेंगे मौला कि महमूदियों में गए थे, महल की सरजमीन पर गए थे, वहाँ इतने लोग जमा थे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा ऐ फरिश्तों इस बात पर गवाह रहना कि जितने उस महफिल में बैठे थे मैंने उन सबकी बख्शिश फरमाई। वाह वाह वाह, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे प्यारे आओ ये बस सोचो, अगर उनको भगोना तैयार करो तो वहाँ से पहले पूछ लेना बात पड़ता है या नहीं, महल के सर पर पड़ता है या नहीं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब वो गौसे आज़म रज़ी अल्लाहु अन्हु की बारगाह में गया और जाने के बाद कहने लगा अब तू बता क्या चाहता है। इतनी सी बात है, बस मैं अपने मुख्तसर टाइम में और खत्म करने वाला हूँ मेरे प्यारे भाई। अब सुनने के बाद रोने लगा, वापस सुनने लगे और टपकने लगे, जब आंसू गिरते हैं मौला की बारगाह में सलाह जाती है और रोने लगता है। रोने के बाद गौसे आज़म रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं बता तू क्या चाहता है, ऐसा तू बता क्या चाहता है। कहा उस वक्त तुमने कहा था, उस वक्त तुमने कहा
सबसे बड़ा मैं मुस्तफा समझता था, शेख अब्दुल कादिर को समझता था। आज मुझे पता चल गया, आज मैं ये चाहता हूँ कि उस वक्त तौबा को करे हुए मेरे साथ कोई नहीं था, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे मौत का कलमा पढ़ा दिया जाए। प्यारे मेरा कहने का मकसद यही है, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे प्यारे ये गुनाह ये सोच कर गुनाह मत करा करो, ये सोच कर गुनाह मत किया करो कि मौत हमें जब हाथ में देखा क्या है, ये सफेद बाल वाले हाथों पर पड़े हैं, घर में सफेद बाल वाले हाथों पर पड़े हैं। और अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नौजवान भाई का इंतकाल हो गया, वो घर से जा रहा है, नौजवान का तो इंतकाल हो गया, वो घर से चला जा रहा है। मेरे प्यारे ये सोच कर मत गुनाह करा करो कि मौत जिंदगी के कोई से हिस्से में भी मौत आ सकती है। आपने क्या सुना नहीं है, सुना नहीं है कि मेरे हाथ अलग ना हो, वफी हाथ नहीं हो, वफी हाथ नहीं हो, तारकन वफा, जिस मिट्टी से हमें पैदा किया है उसी मिट्टी में हमें मिला दिया जाएगा और फिर उस मिट्टी से हमें उठाया जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम लोगों को चाहिए, अभी मेरे कहने का मकसद है, शायर कहता है, ऐ कौने मोहम्मद, ऐ कौने खुदा, ऐ कौने मोहम्मद, ऐ कौने खुदा, फरमान का बदला जाएगा, बदले का जमाना बदलेगा ज़माना ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरा मकसद यही है कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करें, अपने वालिदैन का कहना माने, ना कि अपने माँ बाप को ना सताओ। यार वो 4 दिन की जिंदगी है, उसमें तुम ज़िना करो, चोरी करो, चुगलखोरी करो, गीबत करो, यार दुनिया की तमाम चीज़ों से तौबा कर लो। और हम सबको चाहिए कि हम अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करें।